Greeting students. So in the chapter number 3, up to now we have already discussed the introduction part. The second one was laws of chemical combination. In laws of chemical combination we discussed the two laws. First one was law of conservation of mass, means mass can neither be created nor be destroyed, कि ना तो mass को बना सकते हैं ना destroy कर सकते हैं. And the other definition for law of conservation of mass was, in a chemical reaction the total mass of reactant is always equal to total mass of product. Next law that we discussed was law of constant proportion, कि जब भी कभी कोई कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड किससे बनेगा? Atoms of different element. So when different element combine together, they always combine in a fixed ratio by their masses. So we have already discussed the law of conservation of mass and laws of constant proportion. Now the next issue after these laws is कि उसको अच्छे से explain कैसे किया जाए. Though that explanation related to the chemical substances, atoms and molecules, atoms was specifically given by the John Dalton in the year 1808. He given उसने क्या किया था? He had given a theory called Dalton's atomic theory. So the meaning of Dalton atomic theory, or what was the basic reason behind giving this theory was, if you want to explain the different laws of chemical combination, the law of conservation of mass which was given by Antonio Lavoisier, and the second one was the law of constant composition or constant proportion was given by the Proust. तो उन दोनों को अच्छे से explain करना था. तो उन दोनों को अच्छे से explain किसने किया? By the John Dalton. उसने अपना कोई experimental proof नहीं दिया था. He has given just the postulates. Here I have written the postulates of Dalton atomic theory. The meaning of postulates is they are just the assumptions. कि उसने क्या किया, आप कोई चीज देते हो तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, बट देयर इज नो प्रैक्टिकल प्रूफ बिहाइंड दैट. तो एक्सपेरिमेंटल उसने कोई प्रूफ नहीं दिया था. ये जस्ट एक्सप्लेन दीज टू लॉज. उसको यूज करके उसने अपनी एटम से रिलेटेड की कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसको उसने क्या किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एटम क्या है, एटम अलग अलग एटम जो हैं वो क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे, मासेस के बारे में. तो दीज वर द डिफरेंट पॉइंट that were explained by the Dalton. John Dalton is given a Dalton atomic theory. The first part of this Dalton atomic theory is the postulates of Dalton atomic theory. So the first postulate is all matter is made up of tiny particles. कि सारे के कोई भी मैटर हो, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. कि कोई भी मैटर है वो एक बिल्कुल छोटे से छोटे पार्टिकल का बना होगा या स्मॉलेस्ट पार्टिकल का बना होगा, उसको हम क्या बुलाएंगे? एटम. सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. सो फर्स्ट पोस्टुलेट इज क्लियर टू एवरीवन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कोई भी मैटर है उसका सबसे छोटा पार्टिकल को हम क्या बुलाते हैं? एटम. द सेकेंड पोस्टुलेट इज एटम्स आर indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. So second postulate of Dalton atomic theory was कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल हैं, कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते हैं, ना ही उसको हम बना सकते हैं. कि एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. की किसी भी रिएक्शन के अंदर एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. Third point is atom of given elements are identical in mass and chemical properties. इसका मतलब है कि अगर मैं let's take the example in case of third postulate. For example, if I am taking the example of simplest element which is hydrogen, कि मैं सबसे simple example ले लेता हूँ एलिमेंट में से, वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन. कि वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं हाइड्रोजन गैस के अंदर जितने भी एटम होंगे सब किसके होंगे? हाइड्रोजन के. तो वो कह रहा है कि लेट अज्यूम आपने हाइड्रोजन गैस ली, उस हाइड्रोजन गैस के अंदर 100 एटम थे किसके? हाइड्रोजन के. तो उन 100 के 100 एटम जो है हाइड्रोजन के, उन सब का क्या होगा? सेम मास और सेम केमिकल प्रॉपर्टी. कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, वो जितनी भी हाइड्रोजन है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो केमिकली दे विल प्रोड्यूस
water. So this is the meaning of third point कि atoms of given elements are identical in mass. कि हमने हाइड्रोजन गैस ली, उसके अंदर सारे के सारे एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के. उन सारे के सारे एटम जो है हाइड्रोजन के, उन सब का मास क्या होगा? सेम होगा. उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी. इफ लेट अज्यूम इन हाइड्रोजन गैस वी हैव 100 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो वो 100 के 100 एटम जो हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे? सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे. किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. और वो क्या बनाएंगे? वाटर. तो दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. सो आई होप दिस third postulate is clear to everyone. You can also explain by using the example. Here I have taken the example of hydrogen. You can take any of the example. You can take example of oxygen, nitrogen, water. Next is the fourth postulate. Atoms of different element have different masses and chemical property. कि मतलब अगर different element है, let's assume compare between O and C. O is the symbol for oxygen, C is the symbol for carbon. तो वो क्या बोल रहा है? Atom of different element, atom of oxygen, atom of carbon, उन दोनों का क्या होगा? different mass. तो in brief we have already discussed कि masses क्या होते हैं इनके. तो atomic mass of oxygen is 16U, atomic mass of carbon is 12U. So atoms of different element have different masses, as you can see here. If you want to write few more example, you can write hydrogen. The mass of hydrogen is 1U. Mass of nitrogen is 14U. So हर एक का क्या है? एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के, ये ध्यान रखना. ऑक्सीजन का एटम डिफरेंट है, हाइड्रोजन का एटम डिफरेंट है, कार्बन का एटम डिफरेंट है. हैव डिफरेंट मासेस. ऑक्सीजन का मास कितना है? 16U, हाइड्रोजन 1U, कार्बन 12U, एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी. ये मतलब ये तीनों जो हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इन तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, अगर वो किसी के साथ रिएक्ट करते हैं तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी. ये नहीं है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा. कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर. तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट है? कार्बन ऑक्सीजन से अलग तरीके से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज पोस्टुलेट नंबर 5. तो व्हाट आई हैव रिटन? एटम कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. वो क्या बोल रहा है कि एटम जनरली जब कंबाइन करते हैं तो वो एक सिंपल होल नंबर में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं. तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोस्टुलेट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कि वो ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल वाटर है. इन वाटर इफ वी कैलकुलेट द रेशियो बाय मास, इट इज 1:8 बाय मास. तो सिंपल होल नंबर है. 1 और 8 क्या है? सिंपल नंबर है, होल नंबर है. तो यही वो लिख रहा है कि एटम कंबाइंड इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, छोटा नंबर है 1, 8 छोटा नंबर है, to form compounds. Similar to this fifth postulate is the sixth one. The relative number and kind of atoms are constant in a given compound. इस लाइन का क्या मतलब है? The relative number, the meaning of relative number is कि जब भी आप वाटर का मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें एटम किसके हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसमें अगर नंबर के टर्म में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 2:1. मतलब 2 हमारे क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे और 1 हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन. इन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. कि मैं वाटर कहीं से लूं, अगर मैं नंबर के टर्म में रेशियो निकालूंगा तो हर एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 एटम किसके होंगे? हाइड्रोजन के, एंड 1 एटम विल बी ऑफ ऑक्सीजन. so this is what written here, the relative number. relative number का मतलब जब आप दोनों को कंपेयर करते हो कि वाटर के अंदर जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 टाइम्स, ऑक्सीजन कितने होंगे? 1 टाइम. मतलब जितने हाइड्रोजन है उससे हाफ होंगे ऑक्सीजन. सो रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम. द मीनिंग ऑफ काइंड ऑफ एटम इज कि वाटर के अंदर हमेशा कौन से एटम होंगे? काइंड ऑफ एटम. कौन से कैटेगरी के, कौन से टाइप के? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सिमिलरली इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कौन से काइंड ऑफ एटम होंगे? 1 काइंड ऑफ एटम इज ऑफ कार्बन, 1 काइंड ऑफ एटम इज ऑफ ऑक्सीजन. सिमिलरली अमोनिया, अमोनिया के अंदर क्या होगा? 1 काइंड ऑफ एटम इज ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 काइंड ऑफ एटम इज ऑफ हाइड्रोजन. सिमिलरली इन केस ऑफ ग्लूकोज,
C6H12O6. One kind, there are three kinds of atom: carbon, hydrogen, and oxygen. So this is the meaning of this last postulate. The relative number and the kinds of atoms are constant in a given compound. कि जब भी हम वाटर लेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ एटम है, और उनका नंबर के टर्म में देखेंगे तो दो हाइड्रोजन है और एक क्या है हमारा ऑक्सीजन है. So I hope these postulates are clear to everyone. So these are the 6 postulates of Dalton atomic theory. तो पहला वो क्या बोल रहा है कि matter is made up of very tiny particle, कि matter किस चीज का बना हुआ है, बहुत छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, एटम. सेकेंड इज, एटम को हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, एटम जो होते हैं गिवन एलिमेंट के, कि अगर मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, जैसे आयरन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर जितने भी एटम है वो किसके हैं, आयरन के हैं. उन सब का क्या होगा, सेम मास होगा हर एक एटम का, और हर एक एटम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा कि हर एक एटम आयरन का ऑक्सीजन के साथ एक ही तरीके से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कि अगर हम एक तरफ हाइड्रोजन के एटम लेते हैं और एक तरफ ऑक्सीजन के एटम लेते हैं, तो दोनों का मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. नेक्स्ट इज, एटम जब भी कंबाइन करेंगे तो वो क्या कर कंबाइन करके एक फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड. अब नेक्स्ट पॉइंट सिमिलर टू दैट फिफ्थ पॉइंट, कि नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो नंबर का रेशो होगा और जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे कंपाउंड के अंदर, वो हमेशा फिक्स रहने वाले हैं. कि पानी आप कहीं से भी ले लो, हर बार उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होंगे. ये नहीं है कि उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह पे कुछ और आ जाएगा और उससे पानी बन जाएगा. सो आई होप these postulates are clear to everyone. One more question that comes from the Dalton atomic theory is the how or which postulate of Dalton atomic theory explains the laws of chemical combination. कि कौन से postulate जो हैं Dalton atomic theories के laws of chemical combination को अच्छे से explain करते हैं. So we have already discussed the laws of chemical combination. What was the first law? The law of conservation of mass. What we discussed during that law? ना तो हम मास को बना सकते हैं, ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. डॉल्टन क्या बोल रहा है कि मास किसका होता है, एटम का. एटम मिलके क्या बनाते हैं, मैटर. और मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसका क्या होता है, मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सो कोई भी मैटर है उसका क्या होगा, मास होगा. तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय. मास को बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. तो मास किसका होता है, एटम का. तो सेकंड पोस्टुलेट में उसने क्लियर कर दिया है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. अब एटम को ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मास किसका होता है, एटम का. तो मास भी नहीं हम बना सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो बाय द सेकंड पोस्टुलेट ही एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आई एम अगेन रिपीटिंग कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि ना तो मास को बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो मास किसका होता है, एटम का. तो उसकी जगह पे हम एटम वर्ड रख सकते हैं कि एटम को ना तो बना सकते हैं और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो ये पोस्टुलेट कौन सा है, द सेकेंड वन. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जब भी कंपाउंड बनेगा, वेन एवर द कंपाउंड इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो the ratio between the different element will remain same in terms of their mass. तो ये explain किससे हो रहा है, by the fifth point and the sixth point. कि वो क्या बोल रहा है, एलिमेंट कंबाइन करेंगे और उनके बीच में रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. दिस इज एक्सप्लेन बाय द डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट नंबर 5 and 6. 5 और 6 में भी तो वही बोल रहा है कि एटम कंबाइन करेंगे सिंपल होल नंबर में और मिलके क्या बना लेंगे, कंपाउंड. और एटम के बीच में जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम है वो भी चेंज नहीं होने वाले, और उनके बीच में जो नंबर है वो भी चेंज नहीं होने वाले. अगर नंबर चेंज हो जाएगा तो जो रेशियो है मास के बीच में, इट विल ऑल्सो चेंज. सो whenever question is there कि which postulate of Dalton atomic theory explains the law of conservation of mass or law of constant proportion, don't directly write कि postulate 2 is explaining. You have to write the postulate in which what is written, atom can neither be created nor be destroyed. So you have to write like this. It is all, there are 2 questions given in the NCERT in text in the similar pattern कि which postulate
of Dalton atomic theory explain the law of conservation of mass. So don't directly write postulate number 2. You have to write postulate number 2, which is you have to write atoms are indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Which postulate of Dalton atomic theory explain the law of constant proportion? Postulate number 5 and 6. Or you can write these two postulates. So these two are explaining the laws of chemical combination. So the theory which was given by the Dalton at that time in the year 1808 is more than sufficient. It was the first step to explain the atoms. कि उसने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप था जो एटम्स को एक्सप्लेन कर रहा था. सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. लिमिटेशंस कब आती है? जब हम और ज्यादा स्टडी करते हैं एटम्स को लेके, ठीक है. तो उसके टाइम तक जितनी भी उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी, अवेलेबल रिसर्च था, उन सबको उसने कंपाइल किया, अपने थॉट्स डाले और उसने अपनी एक थ्योरी दी थी. बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू दोज पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. ये जो नए लिमिटेशन थी वो कब आई? जब नए साइंटिस्ट ने और ज्यादा डिस्कवरी करनी शुरू कर दी. व्हाट वाज द सेकंड पोस्टुलेट? कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. कि एटम क्या है? इनडिविजिबल है. एटम से छोटी चीज कोई होती नहीं. बट इन द फ्यूचर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट देने के बाद आगे फ्यूचर में साइंटिस्ट ने नई नई चीजें डिस्कवर की. उन्होंने कहा कि एटम इज नो फर्दर इनडिविजिबल. ऐसा कुछ नहीं है कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते. देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती हैं उसके अंदर क्या होता है? एटम टूटता भी है, नया एटम भी बनता है और डिस्ट्रॉय भी होता है. बट दे आर स्पेसिफिकली कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन. एंड ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द एटॉमिक बॉम्ब that was dropped on Hiroshima and Nagasaki. That atomic bomb is an example of nuclear reaction. उसमें क्या होता है? मास कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर और एनर्जी कन्वर्ट होती है मास के अंदर. यू कैन सिंपली से एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड वेयर? इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन. Nuclear reaction example is atomic bomb, or you can also write nuclear power plant. So there are certain nuclear power plants where electricity is generated. So first limitation is atom is not the smallest indivisible particle, because we have already discussed the subatomic particle which are present inside the atom. कि कुछ हमने पार्टिकल डिस्कवर कर लिए हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. Those are electron, proton and neutron. Second limitation वो क्या बोलता है? दैट इज रिलेटेड टू दी थर्ड पोस्टुलेट. वो क्या बोल रहा था? एटम जो है गिवन एलिमेंट के, उनका मास क्या होगा? सेम होगा. बट देयर आर सर्टेन एटम्स सेम ही एलिमेंट के होते हैं लेकिन मास डिफरेंट होता है. उसको हम क्या बुलाते हैं? आइसोटोप. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं. ये ऊपर लिखते हैं मास नंबर को. तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन का क्या है? 1, 2, 3. केमिकली दे आर सिमिलर बट देयर मासेज आर डिफरेंट. कि वो तीनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के. लेकिन तीनों का मास क्या डिफरेंट? एक का मास कितना है? 1. एक का मास कितना है? 2. एक का मास कितना है? 3. So they are called isotopes. So atom of same element may have different masses. Next postulate क्या था? कि atom of different element have different masses and chemical property. कि जो atom है different element के, उनके मास जो होते हैं वो different होते हैं. कि मतलब कोई भी इसके अकॉर्डिंग तो यही हुआ ना कि एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के, उनका मास सेम नहीं हो सकता. बट देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मास, और उनको हम क्या बुलाते हैं? आइसोबार. Ar is the symbol of argon, Ca is the symbol of calcium. They both have same mass 40-40. So next is यहाँ पे वो लास्ट पॉइंट में वो क्या बोल रहा है कि एटम जो है वो कंबाइन करेंगे इन ए स्मॉल होल नंबर. इसके अकॉर्डिंग तो क्या है कि और कोई बड़ा नंबर नहीं हो सकता जिससे कंपाउंड बनेंगे. बट एज यू कैन सी हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन द एग्जांपल ऑफ शुगर. इसमें जो रेशो है वो सिंपल स्मॉल नंबर नहीं है. वो क्या है? देखो आप C12H22O11. so if you want to write the ratio here, carbon ratio, hydrogen ratio, oxygen, it is 12:22:11. so this is not the small or नंबर. तो छोटे नंबर नहीं है, ये बड़े नंबर हैं. देख सकते हो आप. इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते. सो
these are the few of the limitations of Dalton atomic theory. So I hope this Dalton atomic theory is clear to everyone. So how to write in the fair notebook? Main heading given by John Dalton. Postulate, the meaning of word postulate already explained. Then these 6 points. After writing these 6 points, you can write this heading, explanation of law of chemical combination, and how you have to write I have already explained. Next, the last topic of Dalton atomic theory is the limitations of Dalton atomic theory. So first, second, third and fourth. So I hope everything is clear to the Dalton atomic theory. Now if you have any query related to this theory, you can ask in the comment section, and now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. So thank you students.